बीते दिनों ऑनलाइन खाना डिलीवर करने वाली कंपनी जोमेटो के एक डिलीवर बॉय के द्वारा कर्नाटक के बेंगलुरु की एक मॉडल और मेकअप कलाकार कथित रूप से हमला करने की खबर सामने आई थी। इसके बाद मामले में जोमेटो डिलीवरी बॉय का पक्ष भी सामने आया है और डिलीवरी बॉय का जो बयान सामने आया है वो पूरे मामले को उलट पुलट कर देने वाला है। तो आपको हम बताएंगे कि क्या है मामला और क्या है असली सच। तो सबसे पहले बात करते हैं आरोप लगाने वाली मॉडल से। दरअसल बेंगलुरु की रहने वाली हितेशा चंद्रानी ने कुछ वीडियो के जरिए कहा था कि उन्होंने 9 मार्च शाम 3:30 पर ऑर्डर प्लेस किया था, लेकिन उन्हें ये ऑर्डर 4:30 पर मिला था। ऑर्डर टाइम पर नहीं मिला, इसलिए उन्होंने कस्टमर सपोर्ट को फोन लगाया और उनसे कहा कि या तो पैसे वापस करें या ऑर्डर को पूरी तरह से कैंसिल कर दें। हितेशा ने कहा था कि जब उन्होंने डिलीवरी बॉय से ये कहा कि ऑर्डर को कैंसिल करना है, ये कॉम्प्लीमेंट्री करना है और वह इसके कंफर्मेशन का इंतजार कर रही हैं, तो डिलीवरी बॉय भड़क गया और चिल्लाने लगा। हितेशा ने आरोप लगाया था कि जब उन्होंने डिलीवरी बॉय को इंतजार करने के लिए कहा तो वह काफी अग्रेसिव हो गया और गुस्से में जोर जोर से उन पर चिल्लाने लगा, जिससे वह डर गई और उन्होंने दरवाजा बंद करने की कोशिश की। इतने में डिलीवरी बॉय जबरन उनके घर में घुस गया और उनके चेहरे पर एक जोर से मुक्का मारा। इसके बाद वह ऑर्डर लेकर भाग गया। आपको बता दें कि ये आरोप हितेशा ने कुछ इंस्टाग्राम और ट्विटर वीडियो के द्वारा लगाया था। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर डिलीवरी बॉय के बयान के बारे में बात करेंगे। So guys, my Zomato order was late and I was talking to the customer care executive, and meanwhile the delivery person just did this. He hit me, left me bleeding here and ran off. Please share this video with everyone. Guys, let me tell you the story, right? I ordered food from Zomato because I was working since morning, and then I ordered around 3:30, which was supposed to get delivered by 4:30, and I did not get my order on time. So I was constantly, following up with Zomato team, like either give me a free delivery for the same or just cancel the order, because this is not the thing. You promise something and you deliver something else. So that thing happened, and then the Zomato delivery guy came here. What he did was, he was so rude. He was so freaking rude. And because I have sushi with me, so I usually don't open my full door, so I was just talking him through a small slit from my door, and I just told him, bhaiya, you wait, because I need to check with the team. Either they'll make it free or I don't want the order. And I already gave him the choice, like, I don't need the order, so you just take it, I am okay. But he refused to take the order back, and then again he started screaming at me, bloody I'm your slave or what, you are asking me to wait for such a long time, what the hell. And so it was really threatening for me, and I got scared and I tried shutting my door so that he could not harm me. But before that, he pushed the door, and he was so huge. He pushed the door and he just snatched the order from my table. That is, he entered my house and then he punched me on my face so that I don't get back to him, and he ran away. And sadly, nobody in this premises care to hear anything happening. Nobody responds to any such thing happening. And being a single girl staying, it is so dramatic. Like, people do not come up to you, so which is insane. So guys, after that thing happened, I am at the hospital, and this is my current situation. And it seems like after the X-ray, my bone is broken. So we need to do a surgery for the same, and I can't talk because the moment I start talking, my eyes are starting watering and nose starts bleeding. So this is the update as of now. Also guys, so when I started this video, that snippet is after I visited the hospital, so I had put in just pictures where you can see how badly I am bleeding and what my condition is literally. And I am able to talk right now just because I had been to the hospital and they gave me some high antibiotics and painkillers. Because of that, I am able to talk this much. And also, thank you so much for Bengaluru, Karnataka police. Like, the police station I visited, they were like so humble and gentle, and they literally took care of my concern and they listened to me. And I was so scared after the incident, what happened. So they were like, till the time we are alive, madam, you need not worry about whatever is going on. So that's the update, and I have all the FIR copy and the doctor prescription where it says it is a major damage which has happened to me. And you guys know me, like, I being an influencer and face for you guys, if this gets ruined for me, I don't know what next stands there for me. But I would love if you guys really support and share this video as much as possible, so that this
does not happen to anybody out there. And thank you so much for watching. आपको बता दें कि ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले पर कार्रवाई करते हुए कामराज नाम के आरोपी डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया था। फिलहाल जमानत पर बाहर आने के बाद कामराज ने एक चैनल से बातचीत में रोते हुए बताया है कि मैं उनके अपार्टमेंट के दरवाजे पर पहुंचा और उन्हें खाना दिया। उन्होंने कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट ऑप्शन चुना था और मैं उनसे पेमेंट की उम्मीद कर रहा था। मैंने ट्रैफिक और खराब सड़कों के कारण डिलीवरी में हुई देरी के लिए उनसे माफी भी मांगी, लेकिन उनका व्यवहार काफी खराब था। उन्होंने मुझसे पूछा खाना लाने में देरी क्यों हुई। मैंने माफी मांगते हुए जवाब दिया और बताया कि सड़क पर कंस्ट्रक्शन की वजह से रोड ब्लॉक थे और ट्रैफिक जाम भी था, लेकिन वह जोर देकर कहती रही कि ऑर्डर करने के 45 से 50 मिनट के भीतर खाना डिलीवर करना होता है। मैंने कहा कि मैं इस काम को 2 साल से अधिक समय से कर रहा हूं और यह पहली बार है जब मुझे इस तरह के हालात से गुजरना पड़ा है। कामराज ने कहा कि कस्टमर हितेशा ने खाना लिया और ऑर्डर के पैसे देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह जोमेटो चैट सपोर्ट के साथ बात कर रही हैं। मैंने उनसे पेमेंट के लिए कहा तो उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया और मुझे गुलाम कहा। फिर उन्होंने चिल्लाना शुरू कर दिया और कहा कि तुम क्या कर सकते हो। इस बीच जोमेटो सपोर्ट ने मुझे बताया कि कस्टमर के रिक्वेस्ट ऑर्डर पर कैंसिल कर दिया गया है। इसके बाद मैंने उनसे खाना लौटाने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया। इसके बाद मैंने बिना खाना लिए ही जाने का फैसला लिया और लिफ्ट की तरफ जाने लगा। तब उन्होंने हिंदी में मुझे अपशब्द कहे और मुझे चप्पल से मारा। उनके प्रहार से बचने के लिए मैंने अपने हाथ का इस्तेमाल किया। फिर वह मेरे हाथ हटाने की कोशिश कर रही थी तो गलती से उनका हाथ उनकी नाक पर लग गया और अंगूठी से चोट लगने के कारण खून निकलने लगा। जो कोई भी उनका चेहरा देखेगा वह समझ जाएगा कि यह एक पंच से नहीं हुआ है। मैं कोई रिंग भी नहीं पहनता और इंस्टाग्राम वीडियो में हितेशा रिंग पहने नजर आ रही है। फिलहाल डिलीवरी बॉय कामराज के बयान के बाद यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। इस मामले पर कई लोग ट्विटर पर डिलीवरी बॉय के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। वैसे इस मामले पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। ट्विटर पर किस बात पर हो रही है बहस? मोदी ने कौन सा बड़ा ऐलान कर दिया? इंस्टाग्राम पर क्या फैला है? क्रिकेट जगत में किसने छुड़ाए किसके छक्के? राजनीति में क्या हो रही है उठापटक? किसने किस पर कसा तंज? अब इन सब की जानकारी मिलेगी एक ही जगह पर। जी हाँ, सब्सक्राइब करके द हिंदुस्तान मिरर को और पाएं डेली न्यूज, राजनीतिक उठापटक, क्रिकेट की खबरें और भी बहुत कुछ, सिर्फ और सिर्फ द हिंदुस्तान मिरर। तो अभी स्क्रीन पर दिख रहे रेड बटन को दबाकर जुड़ जाए द हिंदुस्तान मिरर के साथ। धन्यवाद।